کیا آپ گھر بیٹھے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں؟ کیلیبر لیب لایا ہے آپ کے لیے ہوم سیمپل کلیکشن سروس۔ پورے بنگلور میں یہ سروس اویلیبل ہے۔ اب آپ اپنے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے سارے بلڈ ٹیسٹ اپنے گھر ہی میں بیٹھ کر کروا سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر رپورٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نیچے دیے گئے نمبر پر کال کریں یا واٹس ایپ کریں۔ بازو میں رسن بال کھلے شام کا بازار، بازو میں رسن بال کھلے شام کا بازار، بازو میں رسن بال کھلے شام کا بازار ہے فوج حسین کے علمدار کا ماتم، عباس کا ماتم ہے، عباس کا ماتم ہے، علمدار کا ماتم، بھائی کی قاسم کی سرو قاسمی جی کی بیٹا ہو، قاسمی جی کی بیٹا ہو، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ آداب ناظرین، نیوز 16 ڈیجیٹل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ بنگلور شہر میں انجمن امامیہ کے زیر اہتمام 10 محرم یوم عاشوراء کے موقع پر شہدائے کربلا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے ایک خاموش جلوس نکالا گیا۔ انجمن امامیہ ادارہ، جو کہ سال 1936 سے کرناٹک میں ایک رجسٹرڈ شیعہ نمائندہ ادارہ ہے، اس ادارے کے زیر نگرانی اور زیر اہتمام 17 جولائی 2024 بروز چہارشنبہ دوپہر کے وقت امام باڑہ عسکری سے شیعہ آرام گاہ بیلوین بوائز اسکولز کے قریب سر مرزا اسماعیل نگر، حصول روڈ، بنگلور میں 10 محرم یوم عاشوراء کے دن شہدائے کربلا کو یاد کرتے ہوئے ایک خاموش جلوس نکالا گیا۔ محرم نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں بالخصوص شیعوں کے لیے سوگ کا مہینہ مانا جاتا ہے۔ خاص طور پر 10 محرم کو تاریخ کا سب سے المناک واقعہ سمجھا جاتا ہے، جو کہ دریائے فرات کے کنارے 680 عیسوی میں پیش آیا۔ 10 محرم یوم عاشوراء کے موقع پر ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف اپنی جان قربان کی بلکہ اپنی پوری کنیت اور خاندان کے 72 افراد بشمول ایک 6 مہینے کا بچہ بھی قربان کر دیا۔ یوم عاشوراء کے موقع پر بنگلور شہر کی شیعہ برادری کے تمام نوجوان، بوڑھے، مرد و خواتین اس المناک واقعے کی یاد میں ایک خاموش جلوس نکال کر خود پرچم کشائی کر کے اس المناک واقعے پر سوگ مناتے ہوئے دکھائی دیے۔ آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس خبر کی مزید تفصیلات۔ امام حسین علیہ السلام نے بہت بڑا پیغام دیا ہے، بھائی چارے کا، جسٹس کا۔ انہوں نے اپنے گھر کو قربانی دی ہے اور سارا گھر لٹا دیا انہوں نے نماز کو باقی رکھنے کے لیے، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، دین کو باقی رکھنے کے لیے۔ اگر یہ قربانی نہ دیتے امام حسین علیہ السلام انہوں اور ان کے پورے گھر والوں کی، تو آج اسلام نہ ہوتا، ہیومینٹی نہ ہوتی، جسٹس نہ ہوتا، نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام جن کی بدولت ساری دنیا پل رہی ہے۔ آج آپ فلسطین کو دیکھ رہے ہوں گے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں جی، وہاں پہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ بھائی ساری دنیا میں امن اور پیس ہو، بھائی چارہ ہو، جسٹس ہو، آنیسٹی ہونی چاہیے۔ اسی کی بنا پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی پوری خاندان کو قربانی دے دی ہے۔ بس اس کے بعد اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو پیغام ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ بڑے بڑے پریسیڈنٹس دنیا کے بولے ہیں، اگر حسین علیہ السلام کے 72
साथ में रहते, हम जस्टिस लेके आते, ऑनेस्टी लेके आते, इस्लाम लेके आते, हर चीज लेके आते। सारे पूरे प्लकार्ड्स बने हुए हैं, बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स के हैं। गांधी जी ने कहा, उन्होंने कहा है, इफ आई कुड हैव 72 soldiers with me, I would have brought freedom in 24 hours. बहुत बड़ी चीज है, गांधी जी ने कहा। तो अब इसके अलावा और मैं क्या कहूं? सारी दुनिया मानती है, सारी दुनिया में ये आज का रोज छुट्टी दी जाती है, और छुट्टी इसलिए दी जाती है कि उनका गम मनाएं, उनका शोक मनाएं। आज का दिन खुशी का दिन नहीं है, जो कुछ अफराद खुशी मनाते हैं, नहीं, गलत। और क्या कहूँ मैं, हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और उनकी घर वालों की कुर्बानी की बिना सारी दुनिया जी रही है और चल रही है। I mean, everyone should follow him and never bend down in front of the enemy. आवाज उठाओ, कभी गर्दन नहीं झुकाओ. This is what Imam Hussain has taught us. इंसाफ के लिए आवाज। इंसाफ के लिए आवाज उठाओ, कभी दुश्मन के आगे गर्दन नहीं झुकाओ. कहाँ से आए आप? We are from Bangalore. हम लोग इमाम हुसैन का पैगाम सारे इंसानियत के लिए है। सबसे पहला कि आज का दिन, आशूरा का दिन जो है, सही और गलत का दिन है। इमाम हुसैन मैसेज देना चाहते थे कि हुकूमत पे जो बैठा है वो इंसान सही होना चाहिए, वो इंसान के अंदर जो है इंसाफ होना चाहिए, वो परहेजगार होना चाहिए। यानी कि हुकूमत पे कोई भी बैठ नहीं सकता है, जिसके अंदर इंसानियत हो, वही इंसाफ हो, वही जो है कि हुकूमत पे बैठा होना चाहिए। और इसी के लिए इमाम हुसैन ने जिहाद किया था कि यजीद जो है पूरी तरीके से गलत है, वो शराबी है और बेइंसाफ़ी करने वाला है। और यही इमाम हुसैन का सारे कौम के लिए, इमाम हुसैन किसी एक के नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए इमाम हुसैन है। तो इमाम हुसैन का मकसद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे था, वो सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रहे थे। तो उनका मकसद जंग के लिए तो वो गए भी नहीं थे, वरना कौन औरतें और बच्चों को जंग के लिए लेके जाता है। इट वाज जस्ट डायलॉग, उनको कंप्लीट करना था, दिखाना था, बेपर्दगी करनी थी उनकी, जो एक्चुअल में मुसलमान के नाम पे यजीदियत फैला रहे थे, बस और कुछ नहीं था। आज क्या किया आपने? हमने, मेरे भाइयों ने जंजीर करी है, औरतों ने खाना बांटा है, पानी बांटा है, जो भी हो सके इमाम हुसैन के नाम पे जो कर सकते हैं वो करते रहते हैं। पैगाम मैं क्या बोलूँ, यूनिटी रखना, पीस मेंटेन करना है, कभी किसी के साथ लड़ना नहीं चाहिए, और अल्लाह के राह पे चलना चाहिए। अल्लाह को अल्लाह को मान के अल्लाह जो बोल रहे हैं उनके बात सुनना चाहिए। इमाम हुसैन जो थे वो पीस के लिए बहुत लड़े थे, उन्होंने उनकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नाम पे दे दी। तो वो उनका पैगाम यही है कि सिर्फ अल्लाह के राह पे चलो और इंसानियत से सबको खुश रखो, और अपने जो माँ बाप, अपने फैमिली और अपने दोस्त और सब लोग तुम्हारे आसपास जो भी है उनको खुश रखो। वही उनकी मेन। आप मातम मनाते हैं, खून के छींटे उछले, आपको तकलीफ नहीं होती? तकलीफ होती है, वो तकलीफ महसूस करने के लिए ही हम मातम करते हैं, क्योंकि जो इमाम हुसैन ने जो तकलीफ जो महसूस की थी वो हम अगर कुछ भी हो जाए तो हम महसूस नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि हम तो तकलीफ महसूस करें, पर हम कुछ भी करें फिर भी हमको वो तकलीफ महसूस नहीं होती। तो वही हमारा रीज़न है कि हम मातम करते हैं, वो तकलीफ महसूस करेंगे। अतफाल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शब आशूर से ये सिलसिला शुरू हुआ। शब आशूर में भी मातमी जुलूस होता रहा, उसके बाद सुबह सुबह जो है ज़ियारत आमल आशूरा बोल के नमाज होती है, नमाज के बाद ज़ियारत होती है, उसके बाद जो है मजलिस के बाद मातमी जुलूस आस्ताने आशुखाने अस्करी बड़ा घर वहाँ से हसूर रोड से होता हुआ अभी चल रहा है। इंशाल्लाह जो है शिया कब्रिस्तान तक जो है ख़त्म हो जाएगा। काफी बड़ी तादाद इस बार देखने इस बार माशाल्लाह बहुत लोग आए हैं, क्योंकि बेंगलुरु में जो है नॉर्थ इंडिया से, दूसरी मकाम से काफ़ी लोग आए हुए हैं। सब लोग, आज का दिन ऐसा है कि एक तो गवर्नमेंट हॉलीडे है, प्लस जो है हर आदमी के दिल में वो होता है कि शहादत के दिन मरकज़ में जाके अक़ीदत पेश करें। यहाँ पे जो बेंगलोर में रहने वाले अलग अलग कंट्री के लोग हैं वो भी शामिल होते हैं? अलग अलग कंट्री के पहले होते थे, अब उतने ज़्यादा नहीं। पहले ईरान से थे, अरबी लोग थे,
सब बहुत काफ़ी तादाद थी उनकी, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे वो भी शामिल होते थे। अभी थोड़ा कम है, अभी थोड़ा कश्मीर के या उधर नॉर्थ कर्नाटका के लोग हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग उनका करते हैं ज़्यादा। पहले क्या था, फॉरेन कंट्रीज के भी थे, बहुत से थे फॉरेन कंट्रीज। आज का क्या पैगाम है सर? आज बस आज का एक ही इम्पोर्टेंट पैगाम है कि आज दौरे आलम में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, एक इंसानियत का पैगाम जो 1400 साल पहले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिए थे कि इंसानियत को बचाएं, अपना सब कुछ लुटा दिए, अपने यहाँ तक कि 6 महीने के बच्चे को तक उन्होंने कुर्बान कर दिए इस मकसद के लिए कि आने वाली क़यामत तक जो है इंसानियत बाकी रहे, ताकि इंसानियत का सिलसिला अच्छा चलता रहे। उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं का सदका है कि आज सारी दुनिया में इंसानियत के तहत दुनिया चलती आ रही है। क्या आज फ़लस्तीन के गयूर मुसलमानों को भी याद किया गया? बेशक, उनके हमारा इमाम हुसैन का ये पैगाम है, हमारा नहीं, इमाम हुसैन का ये पैगाम है कि जहाँ पर भी जुल्म होता है तो जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, मज़लूम की हिमायत करें। यही मेन मुद्दा रहा इस बार के ख़ास कर ये मुहर्रम में, ये अशरे में, सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी आज़ादारी का ये प्रोग्राम्स रहे सारी दुनिया में, वहाँ पर यही एजेंडा रहा कि फ़लस्तीन के बच्चों की हिमायत किया जाए। सारी दुनिया के मुसलमानों से रिक्वेस्ट किया कि इत्तेहाद रहें और गाज़ा के जो बच्चे और औरतें और वहाँ के लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और उनको साथ दें। अंजुमन इमामिया की जानिब से क्या क्या इंतज़ाम था? आज अंजुमन इमामिया के सबसे हस्ब मामूल हर साल की तरह ये जुलूस का प्रोग्राम, ज़ियारत का आमाल जिसके अंदर नमाज वगैरह होती हैं, सारे इंतज़ाम खाने पीने का सब कुछ अंजुमन इमामिया की जानिब से होता रहा है और मोमिनीन के ताउन से होता है।